آج پیدا ہوا ہے، اس لیے مڈ نائٹ جو عبادت ہوتی ہے 24 کی ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یسوع نے رات کو قدم رکھا تھا، کیونکہ یسوع خود نور ہے اور وہ نور بن کر آیا تھا کہ دنیا کی تاریکی ختم کر دے، اور جو تاریکی دلوں میں ہے، زندگیوں میں ہے، اسے بھی خدا ختم کرے۔ جیسے پاسٹر عامر نے کہا کہ آج کا ہمارا ایک ٹاپک ہے کہ یسوع مسیح نے کمواری سے کیوں جنم لیا۔ ہم گاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پر کبھی ڈیپلی غور کیا؟ وہ ماں باپ کے ملاپ سے بھی آ سکتا تھا، وہ کسی شادی شدہ مرد اور عورت کے وسیلے سے بھی آ سکتا تھا، یہاں تک کہ اگر سوچا جائے، دیکھا جائے تو جو یسوع مسیح ابراہم سے کہتا ہے، ابراہم کے بارے میں سارے لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر خدا چاہے تو ابراہم کے لیے پتھروں میں سے بھی کیا کر سکتا ہے؟ اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ جو خدا مٹی سے آدم کو بنا کر اس کو زندہ جان بنا سکتا ہے، جو آدم کی پسلی میں سے ایک ہڈی لے کر ایک ہوا کو بنا سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ لیکن وائی ورجن برتھ، کیوں کماری سے پیدائش لینا پڑ گئی؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے کلام پاک میں سے پڑھیں گے 23ویں آیت تک کلام مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے 23ویں آیت تک، جی سنیے تلاوت سماعت فرمائیے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ یسوع نے کماری سے کیوں جنم لیا؟ یسوع کماری سے کیوں پیدا ہوا؟ بولیے گا، یسوع کماری سے، جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ اس کو سوال کریں، یسوع کماری سے کیوں پیدا ہوا؟ سوال ہے یسوع کماری سے، اور یہ بائبل مقدس کا بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال دنیا کے لیے الجھن بنا ہوا ہے۔ یہ سوال یہودیوں کے لیے الجھن بنا ہوا ہے۔ یہ سوال دنیا کے بے شمار مذاہب کے لیے کنفیوژن بنا ہوا ہے، اور اسی سوال پر بے شمار بدعت نے جنم لیا ہوا ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ خدا کوئی اور طریقہ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن پوری دنیا میں ایک ہی کنواری حاملہ ہوئی ہے، اور وہ مقدسہ مریم ہے۔ چند باتیں، 6 ایسی وجوہات ہیں جس وجہ سے یسوع کماری سے پیدا ہوا۔ کتنی؟ 6 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو آپ نے اسی حوالے میں پڑھ لی، لکھا ہے، سنیں کیا لکھا ہے یہاں پر، آیت نمبر 22 میں، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ کیا پورا ہو، کہ دیکھو پہلی بات ایک کنواری کا حاملہ ہونا، یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ جو کچھ بھی خدا نے نبیوں کی معرفت کہا ہے، جو کچھ بھی خدا نے
हजारों साल पहले नबियों की मार्फत नबूवतें की हैं, पेशगोइयां की हैं। खुदा का कलाम कभी भी रायगा नहीं गया। खुदा का कलाम जब भी आया है वो असर दिखा के रहा है। अगर मरियम हामला ना होती तो वो नबूवतें जो पेशगोइयां पुराने अहदनामा में एक कंवारी के बारे में की गई, ईसाई नबी के सहीफा के 7वें बाब की 14 में लिखा हुआ है, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये नबूवत थी। और अगर यीशु मसीह कंवारी से पैदा ना होता तो खुदा का कलाम झूठा ठहरता। अगर आपने मत्ती की रील पढ़ी हो तो आपने एक लफ्ज बड़ा गौर करके बार बार लिखा हुआ है, और ये वो था जो नबी के मार्फत कहा गया था, पूरा हुआ, पूरा हुआ। बार बार लिखा है पूरा हुआ। ये नबी के मार्फत कहा गया, वो नासरी कहलाया गया, वो पूरा हुआ। वो मिस्र भाग गए, पूरा हुआ। राहल अपने बच्चों को रो रही है, पूरा हुआ। सो जो कुछ भी खुदा ने नबियों की मार्फत कहा है, खुदा का कलाम सच्चा है, बरहक है, सादिक है, और उसका कलाम कभी भी रायगा नहीं गया। लिहाजा पहली वजह कंवारी का हामला होना इस बात का सबूत है कि खुदा का कहा हुआ हर एक लफ्ज नुक्ता पूरा होता है। हालेलुया। मौसम बदल जाए, दौर बदल जाए, लोग बदल जाए, हुकूमतें बदल जाए, बादशाह बदल जाए, लेकिन खुदा के बारे में कलाम के बारे में कि खुदा के मुंह से निकली हुई लफ्ज की जो बात है, आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। पहली बात, खुदा का कलाम पूरा होने की वजह से कंवारी का हामला होना लाजमी था। दूसरी बात, क्यों कंवारी से जन्म लेना जरूरी था? यहूदियों को एक साइन दिया गया था मिसाया के बारे में। जैसे मैंने कहा, क्रिस्तुस, मिसाया, माशेख। यहूदियों को एक शख्स के बारे में बताया गया था। यहूदियों को बचाने के लिए, यहूदियों को फतह दिलाने के लिए, यहूदियों को सरफराज करने के लिए एक माशेख आएगा, और माशेख के लिए एक इशारा था, एक साइन था, और वो साइन ये था, वो कंवारी से आएगा। किससे आएगा? कंवारी से। और इन नबूवतों से जो पैदाइश की किताब के 3 चैप्टर में 15वीं आयत में लिखा हुआ था, मैं औरत की नस्ल और तेरी नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत। अलमा इब्रानी लफ्ज, एक औरत, जवान औरत। और ये इसलिए था, ये एक हिंट था, इशारा था, ये कोड वर्ड था मिसाया की पहचान का। भाई नबी बड़े पैदा हुए, पैगंबर आए, बड़े पैदा हुए, लेकिन एक स्पेसिफिक इशारा था, एक कोड वर्ड था कि मिसाया का कोड ये होगा, एक कंवारी लड़की हामिला होगी। और यहूदियों में आज भी ये तरीका का राज है। जैसे ही उनकी जवान लड़कियां, जब उनमें जवानी के सिम्टम नजर शुरू कर देते हैं, तो हर यहूदी लड़की कंवारी हर वीक में एक रोजा रखती है, और उनका कहना यह है कि शायद हमारे खानदान में से हमारी बच्ची जो है ये हामला हो जाए और ये मिशाया को जन्म दे, ये मसीहा को जन्म दे दे। तो ये एक साइन था मसीहा का, मिसाया का। और आपने अगर अनाजील पढ़ी हो तो बाइबल मुकद्दस में जब सामरी खतून से यीशु मसीह ने बातचीत की, तो सामरी खतून ने शोर डाला था, मुझे ख्रिस्तुस मिल गया है। पतरस इंद्रियास के भाई ने कहा, जिसकी नबियों ने नबूवतें की थी, यानी वो ख्रिस्तुस हमें मसीह मिल गया है। यानी यीशु मसीह का कंवारी से पैदा होना ये बात का सबूत था कि वो यहूदियों की उम्मीद है, यहूदियों का मिसाया है। लेकिन यहूदी लोग इस बात को कबूल नहीं से करते। लेकिन जिन लोगों ने उसे कबूल कर लिया, लिखा है उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। सो दूसरी बात,
यीशु मसीह का कंवारी से पैदा होना इसलिए जरूरी था ताकि जो शिनाख्त यहूदियों को दी गई थी उसको वाजिया किया जा सके। तीसरी बात, यीशु मसीह का कंवारी से पैदा होना क्यों जरूरी था? ताकि साबित हो जाए कि यीशु मसीह में खुदा की अलहुयत या खुदाबंदी है। अगर वो किसी इंसान के मिलाप से पैदा होता है तो फिर खुदा नहीं होता। लिहाजा यीशु मसीह की इलाही फितरत की तस्दीक थी ये, यानी यीशु मसीह की इलाही फितरत की तस्दीक के लिए ये जरूरी था कि वो पैदा हो एक कंवारी से, ताकि दुनिया उसकी खुदाई जात से वाकिफ हो जाए। चौथी बात जिस पर आप थोड़ी सी बात डीपली करेंगे, क्यों कंवारी से पैदा होना जरूरी था? आपको याद होगा कि जब खुदा ने आदम हवा को बनाया तो आदम हवा को बनाने के बाद खुदा ने एक बात कही कि बढ़ो, फलो और जमीन को मामूलो महकूम करो। अब ये बात शैतान भी वाकिफ हो गया था। खुदा ने आदम के डीएनए को बरकत दे दी है, बढ़ो, फलो और क्या करो, जमीन को। यानी खुदा ने आदम के बीज को, आदम के सीड को बरकत दे दी। और इब्लीस इस बात से वाकिफ था, अगर ये दोनों आदम हवा इस कदर मुकद्दस हैं तो जब इनकी नस्ल जमीन पर आएगी तो वो भी मुकद्दस होगी। लिहाजा आदम ने जो आदम को खुदा ने बरकत दी, तो जो इब्लीस का सबसे पहला टारगेट था वो आदम का सीड था, तुखम था। और कलाम पाक में लिखा हुआ है जब आदम ने गुनाह किया ना, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदा ने आदम से बात की थी, जिस दिन तूने गुनाह किया तू, जब तूने फल खाया तो तू मर गया। अब जब आदम ने गुनाह किया तो गौर कीजिएगा, गुनाह तो आदम कर रहा है, लेकिन निकाली में सा रोमियो बाब नंबर 3, रोमियो का मुसन्नफ क्या कहता है, इस हवाले को पढ़ेंगे। रोमियो बाब नंबर 3 सुनेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। रोमियो बाब 3 और उसकी आयत नंबर 23 लिखा है, सुनिए। इसलिए कि सबने गुनाह किया। क्या लिखा है? सबने गुनाह किया। आपने किया था, मैंने किया था, हम बागेदन में थे। हम कब थे? लेकिन हम आदम के तुखम के अंदर थे। क्या लिखा है? सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। रोमियो 5:12 पढ़ेंगे, बड़ी गौर से, बड़ी बारीकी से, आहिस्ता से पढ़ेंगे। रोमियो 5:12। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह, कितनों के सबब से क्या आया दुनिया में, और गुनाह के सबब से, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सबने गुनाह किया। जिस दिन आदम ने बागे अदन में गुनाह किया तो आदम के अंदर जो खुदा ने डीएनए बनाया हुआ था वो करप्ट हो गया। उसका बीज, उसका सीड जो है, अब वो गुनाह की वजह से गुनहगार है। अब आदम के तुखम से जो भी बेबी पैदा होता जाएगा और नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला आगे चलता जाएगा, तो दुनिया का कोई बंदा भी अब मुकद्दस नहीं रहेगा। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, ईसाई नबी के सीफा 59 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, खुदावन का कान छोटा नहीं जो, खुदा का हाथ छोटा नहीं जो बचा न सके, और कान फनी जो, बल्कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच में क्या डाल दिए? गुनाह ने जुदाई डाल दी है। अब जरा गौर कीजिएगा, थोड़ी सी बात समझिए। दाऊद नबी ने ज़बूर 51 जब लिखा ना, तो ज़बूर 51 तो पढ़ेगा क्या लिखे, ज़बूर 51 का पढ़िएगा। और दाऊद नबी ने इसको थोड़ा सा बड़ा वाज़ेह करके बयान किया। ज़बूर 51
लिखा है ज़बूर 51 और आयत नंबर 5, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी। जब अपनी मां के पेट में बेतरतीब मादे के तौर पर बन रहा था तो मैं नहीं बन रहा था, बल्कि जब मेरी आंखें बन रही थी, जब मेरे कान बन रहे थे, तो बेसिकली मैं बदीचे बनने आसा। वो जो बच्चा मां के पेट से भी हो गया, जो गुनाह आदम ने किया उस गुनाह के दुखम की वजह से अब जो बच्चा, चाहे वो अब्राहम था, इसहाक था, याकूब था, मूसा था, कोई नबी भी था, कोई बंदा भी था, वो अब उस गुनाह के जहन से नहीं बचेगा। क्या लिखा है? लिखा है देख मैंने बदी में सूरत है और मैं गुनाह की हालत में, मैं गुनाह की हालत में मां के, तो पता मैं इसको क्या कहने लगे, असी मां के ढिडों मरे पैदा होते थे। अब आप कहेंगे ओ भाई साहब ये क्या कह रहे, हम मां के पेट से मुर्दा पैदा होते हैं। आप कहेंगे भाई साहब ये क्या आप कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे, भाई जो बंदा मंजी पर पड़ा था वो तो मुर्दा हो गया, जो उठा रहे वो कहते मुर्दे हैं। जब यीशु ने कहा ये भी मुर्दा है, तो भाई जब मुर्दा है तो मां के पेट से जिंदा कैसे बाहर आएंगे? कैसे? बेसिकली आए तो फिजिकली हम लोग जिंदा थे, लेकिन स्पिरिचुअली आदम के गुनाह के सबब से हम मां के पेट से मोए पैदा होने, मरे पैदा होते हैं। फिर क्यों मेरे यीशु ने कहा था तुम्हें दूसरा जन्म लेना? अगर हम अपनी मां के पेट से जिंदा आते हैं तो फिर हमें सेकंड बर्थ क्यों चाहिए थी? लिहाजा मेरे अजीजों, आपने ये तो सुना होगा जन्म का लंगड़ा, जन्म का अंधा, लेकिन कभी ये सुना कि जन्म का मोया भी पैदा होता? हम मुर्दा पैदा। मैनू विच गुनाह दे, सारे बोलो मैनू विच गुनाह दे। इत्तेफाक कर दो ज़बूर देते, मैनू विच गुनाह दे। तो फिर आप ये भी मानना पड़ेगा गुनाह की मजदूरी। अब बताइए मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी ते गुनाह की मजदूरी की है? हुण दसो असीं मां दे पेट चों किहड़े आउणे आ, किहड़े होने आ? जिंदा दसो। ते जे कह दे भैन मार के मुर्दा पैदा है, हार यार दवा हो कि मुंडा है। बात हो रही है यीशु मसीह ने कमारी से जन्म क्यों लिया? अगर यूसुफ और मरियम के मिलाप से यीशु आए तो फिर यीशु भी मुर्दा ही आएगा, क्योंकि यूसुफ का दुखम भी तो आदम का दुखम है, क्योंकि यूसुफ के अंदर भी तो आदम की नस्ल है, आदम का दुखम है, आदम का बीज है। तो भाई अगर वो किसी बंदे से भी, कोई बंदा भी होता, मरियम का शौहर कोई भी होता, कोई इंसान किसी भी शहर का होता, लेकिन वो दुखम मर्द का होना था। गुनेगार, सुनो मेरे, गुनेगार गुनेगार ही जमेगा। हालेलुया। कि मैं क्या गुनेगार क्या करेगा? तो फिर गुनेगार का कफारा गुनेगार तो ना दे सका। फिर जब खुदा देखा ना कि शैतान ने बड़ा काम किया है, उसने हर बंदा करप्ट कर दिया, हर शख्स, हर इंसान को करप्ट कर दिया, मेल है फीमेल है, तो फिर खुदा ने बागे अदन के अंदर ही ऐलान कर दिया मैं औरत की नस्ल से एक को लाऊंगा, आदम का तुखम अब कैंसिल करूंगा, मैं नया तरीका दिखाऊंगा दुनिया को। एक कुंवारी हमला होगी और बेटा चलेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे। इसका तर्जुमा है खुदा हमारे, खुदा हमारे। ऐसा सिलसिला मैं पैदा करूंगा, मैं तखलीक करने वाला हूं। अगर मैं आदम को मट्टी से, हवा को हड्डी से पैदा कर सकता हूं, मैं अपने बेटे को कंवारी से पैदा करूंगा और वो कहलाएगा मलूदे मुकद्दस।
तो जिस दिन यीशु मरियम के पेट से पैदा हुआ, मुर्दा नहीं जिंदगी वाला पैदा हुआ। इसलिए मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सोच रहा था कि यूहन्ना अपनी मां के पेट में था और जब मुकद्दसा मरियम उसके घर में आई तो मरियम ने सलाम की तो इसमें कहा, देख जैसे तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के ते बच्चे ने खुशी का चली रही बात है। ए यूहन्ना अपने मां के पेट एक्साइटेड क्यों हो गया, खुश क्यों हो गया? यूहन्ना को पता था कि मैं तो अपने बाप के तुखम जकरिया से आया हूं, लेकिन जो मरियम के अंदर है ये खुदा के तुखम से है, रुल कुद्स की कुदरत से है। लिहाजा ये मुकद्दस मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा पाक है। तद खुशी हो बोले क्या, मैं ते अलिशबा ते जकरिया का बच्चा हुआ, लेकिन जो मरियम के पेट में है ये गुनाह से पाक है। हालेलुया, हालेलुया। कवारी से पैदा होना लाजमी था ताकि हम गुनहगारों का कफारा जो देगा उसे पाक होना लाजमी है, उसमें गुनाह का आदम का कोई अमल दखल ना हो। सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है और खुदा ने ये नबूवतें कर दी थी, क्योंकि बेसिकली हमारा मसला गुनाह का है। इंसान का बीज, जुमला गौर में सुने, इंसान का बीज गुनाह का चश्मा है। जितने भी मेल हैं उनका सीड करप्ट है, उनका सीड गुनाह का चश्मा है। फिर खुदा का कलाम बयान करता है खुदा ने क्या खूबसूरत प्लान किया, और बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है। निकालिए पहला ग्रंथियों का खत 15वां बाब, निकालिए यहां पर पहला ग्रंथियों 15वां बाब, लिखा है आयत नंबर 22, जैसे आदम में सब मरते हैं। क्या लिखा है? आदम में तो भाई अगर आदम से पैदा होते हैं तो सब मरते हैं। यीशु क्यों मरा? यीशु अपनी मौत नहीं मरया, यीशु साडी मौत मरे। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब। अब यीशु तो गुनाह से पाक पैदाइश वाला हो गया, फिर कल्ला नहीं गया, उसने खुद गुनाह से पाक पैदा होके हमें लावारिस नहीं छोड़ा, उन्हें साडा भी सदे बाप का जय नाल डाली। यूहन्ना 1 निकालिए, यूहन्ना पहला बाब। क्या खूबसूरत बयान है मेरे खुदा के कलाम में से, क्या खूबसूरत स्टेटमेंट है। पढ़िएगा क्या लिखा है। लिखा है यूहन्ना पहला बाब आयत नंबर 12। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें बड़ी कोठी दे दी, उनकी लाठी कटवा दी, उनका वीजा लगवा दिया। क्या ख्याल है? जितनों ने उसे उनकी तन्हाई लगवा दी। बोलो, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का उसने कहा अगर मैं खुदा का बेटा हूं और मैं पाक पैदा हुआ हूं तो मैं दुनिया को भी नापाक नहीं छोड़ूंगा, उनका भी पैदाइश का बर्थ का तरीका मैं चेंज कर दूंगा, उनके तुखम को भी मैं ब्रेक करके अपने तुखम को आगे ट्रांसफर करूंगा। क्या लिखा सुनिए, जिन्होंने उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से ना जिस्म की ना मियां बीवी की सलाह नाल। क्या लिखा है? मैंने कई दफा मुझे इत्तेफाक हुआ घर में जाने, तो
خاتون نے کہا کہ میرا شوہر کہتا نہیں ساروں نے ابھی بیوی چاہیے تھا، اس نے ایسے جگہ میں کئی بیوی ابورشن کروا دیے، ابھی میں کچھ بن جاؤں ذرا، ابھی میں کچھ کیریئر بنا لوں. کئی ایسے کرتے ہیں. یہ ابورشن مرڈر ہے. لیکن لکھے وہ نہ روح سے نہ جسم کی نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا. یسوع خدا سے پیدا ہوا ہے. اس نے آپ کو بھی نوازا. اس نے کہا میں تمہیں بھی خدا سے پیدا کروں گا. کیسے پیدا کروں گا؟ نکالیے پہلا پطرس، نکالیے ذرا میرے ساتھ پہلا پطرس کا خط نکالیے. اور کیا خوبصورت بیان کلام پاک میں لکھا ہے. پہلا پطرس اس کا 2 باب اور آیت نمبر 23. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں. اگر آپ کے پاس انگلش بائبل ہے تو کھولی، وہاں پہ لکھا ہوا ہے تم فانی تخم سے کرپٹ سیڈ. لکھا کرپٹ سیڈ، سیڈ لفظ لکھا ہوا ہے. تم آدم کی نسل والے تخم سے نہیں پیدا ہوئے. سنیے، تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، یعنی خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. کماری سے پیدا ہونا ضروری تھا کفارہ دینے کے لیے، مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے. کیا اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا؟ کیا گنہگار کو بچائے گا؟ کیا جس کی آنکھ میں شتیر ہو وہ تنکا نکالے گا؟ تنکا تو شتیر وہ نکالے جس کی آنکھ صاف ہے. اور یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت بیان کہے، تم میں سے کون مجھ پہ گناہ ثابت کرے گا؟ اچھا، گناہ کا الزام لانا فرق کر لے، ثابت کرنا یہ مشکل ہے. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں، اصل میں ہمارے خداوند کا کنواری سے پیدا ہونا لازمی اس لیے تھا تاکہ وہ نسل انسانی کے تخم اور سیڈ کو بریک کر کے آپ کے لیے اور میرے لیے زندگی کے لیے کفارہ بن سکے. چوتھی بات کیوں لازمی تھا؟ وہ ہماری فطرت لے کر آیا ہے. اچھا، کبھی آپ نے غور نہیں کیا پرانے زمانے میں یسوع کبھی آیا تھا دنیا میں کہ نہیں؟ کسی نے دیکھا ہو یسوع کو؟ کوئی حوالہ پڑھو. ہاں لکھے کیا فرشتے جسم لے کر آتے تھے کہ نہیں پہلے وقتوں میں؟ ابراہم تے کول کون آیا سی؟ روٹی کھاتی سنے؟ بولے روٹی کھاتی سنے؟ پانی پیتا سنے؟ پیر تو آئے سن؟ فرشتے باڈی لے سکتے ہیں؟ بولیے نا، جواب دیئے. لے سکتے ہیں. تو بھائی اگر فرشتے باڈی لے سکتے تھے تو پھر یسوع کو باڈی کیوں لینی پڑی؟ کسی فرشتے کو بھیجتا چل بھی جا جسم لے کے ٹوٹ جا. فرشتوں کی اپنی فطرت ہے، جانوروں کی اپنی فطرت ہے، پرندوں کی اپنی فطرت ہے، انسان کی اپنی فطرت ہے، خدا کی اپنی فطرت ہے. خدا آپ کی فطرت سے پیار کرتا تھا، اس لیے وہ آپ کی نیچر لے کر آیا تھا. آپ کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرے، سمجھے اور پھر آپ کا حل کرے. نکالیے رومیو عبرانیوں کا باب نکالیے گا. عبرانیوں باب نمبر 2. تھوڑے لیے اعزاز ہوا ہے کہ یسوع ساڈے ہاتھ دا بن کے آیا، انسان بناون والا. انسان نکالیے گا میرے ساتھ عبرانیوں کا خط اس کا 7واں باب اور پڑھیے پر کیا لکھا ہے. 7واں باب کیا لکھا ہے 26. چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو، گناہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو. شکریہ. عبرانیوں 4 باب آیت نمبر 15. عبرانیوں 4:15. کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے. ایک دفعہ نے کسی بندے نے شکوہ کیا آسمان سے منہ دیکھ کے، خداوند تجھے کیا معلوم ہو انسان کا کیا درد ہے، انسان کیسے تکلیفیں اٹھاتا ہے. خداوند تو آسمان پر بیٹھا کیا کرتا ہے؟ تجھے میرے دکھ کا علم نہیں، میں دکھی ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، تو نہیں جانتا. آواز آئی آسمان سے، میں تیری تکلیف سہ کر گیا ہوا ہوں. میں نے پتہ ہے بھوک کی ہے، میں نے پتہ ہے پیاس کی ہے،
दर्द मैनू भी पता कि होंगे, जब कील भौंके गए, थप्पड़ मारे गए, मैं प्यासा था, मैंने सारी फीलिंग ली है। इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? सुनिए, अगर किसी का छोटा बेबी मर गया हो ना, तो उसकी फीलिंग मुझे पता होगी कि नहीं। यीशु मसीह ने आपकी जब नेचर ली, क्या ख्याल है, यीशु मसीह आपकी तमाम नेचर से वाकिफ है कि नहीं? फीलिंग से वाकिफ है। आंसू क्या होता है, भूख क्या है, थकावट क्या है, दर्द क्या है। सो यीशु मसीह ने फितरत पता क्यों ली? ताकि वो हम जैसा बनकर, मेरे जैसा बनकर हमें ये बता सके कि मैं तुम्हारे दुखों में तुम्हारा हमदर्द हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है, कुंवारी से जन्म लेना लाजमी था, और आखिरी बात, उसको नया आदम बनना जरूरी था। अब मुझे बताइएगा, निकालिए पहला ग्रंथियों 15वां बाब, आखिरी हवाला पढ़ेंगे मेरे साथ। पहला ग्रंथियों 15वां बाब, सुनिए क्या लिखा है। लिखा है आयत नंबर 45, चुनाचे लिखा भी है, पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था, बल्कि उसके बाद पहला आदमी जमीन से यानी हाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो हाकी था वैसा ही और भी हाकी है, जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी है। और जिस तरह हम इस खुदा की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। अब मुझे बताइए, कितने लोगों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया हुआ है? हाथ चुको। अब बताइए मुझे, आपका बाप कौन है? दो अब भेजो, पहला आदम और दूसरा आदम। बॉडी आपकी पहले आदम की है, लेकिन नई बॉडी दूसरे आदम की है। ये बॉडी पहले आदम की है, इसको मरना है, कब्र में जाना है, लेकिन जो अंदर की बॉडी है, अब आपके पास अंदर ही बॉडी भी है, हवाले सारा भी लिखा है बाइबल से, टाइम में मेरे को है। आओ निकालो, पढ़ लो, 15 बाब निकालो, 15 बाब निकालिए, 15वां बाब निकालेंगे यहाँ पर। 15वां बाब पहला ग्रंथियों और आयत नंबर 38 से पढ़ते हैं। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, हर एक बीज को उसका खास जिस्म। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर जो बीज काम कर रहा था, दो बीज काम कर रहे थे। फिजिकली मरियम का बीज है, फिजिकली बॉडी है, लेकिन स्पिरिचुअली उसमें किसका बीज काम कर रहा है? खुदा का। थोड़े अंदर भी दो तुखम काम कर दे जे। पहला किधर सजे? ये बॉडी है, विल्सन का तुखम है। ये बॉडी किसका है? किधर तुखम है? दौलत। ये किसका है? लेकिन जेडी बॉडी दे अंदर है, वो तुखम किधर? वो किसका बीज है? पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपायों का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और है, और मछलियों का गोश्त और आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का और। अब आपके तो दो बॉडी है, आप में दो जिस्म काम कर रहे हैं, एक रूहानी जे ते एक जिस्मानी किराया। अबू जी का पुराना आदम, नई बॉडी की दी है। नई बॉडी किसकी है? जिस दिन यीशु मसीह आसमानों से आएगा, केड़ी बॉडी जाएगी आसमान थे? एक बॉडी नु खुदा चेंज करके
اسے جلالی باڈی بنا کے آسمان پر لے کے جائے گا. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزوں کماری سے پیدا ہونا کوئی عام گل نہیں سجے. یہ تواڈے تے میرے واسطے بڑا بڑا شرف ہے. اس نے کماری سے جنم لے کر تواڈا جسم بدل چھڑیا. انہیں آپ کی روحانی باڈی کو اس قدر سے تیار کر دیا ہے کہ اب بائبل بیان کرتی ہے جسم تے مر جائے گا لیکن ساری روح نہیں مرے گی. اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, دعا کریں. خدا